Hello students, today in chapter polynomial we will discuss the following topics: factor, multiples and division algorithm. So फैक्टर को हम हिंदी में वी से गुणनखंड, मल्टीपल्स को हम हिंदी में गुणज कहते हैं और डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं बहुपद में विभाजन एल्गोरिदम। इसको समटाइम्स लॉन्ग या एक्चुअल डिवीज़न भी बोलते हैं, एक्चुअल डिवीज़न एल्गोरिदम या वास्तविक भाग प्रक्रिया। तो जो मेन टर्म्स हैं उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ we will see what we mean by the term factor and multiple in polynomials. So first let us take numbers. As we know already division process in numbers, so first understand the process by numbers. So if we take two numbers 3 and 27 and we write 27 by 3, what is our answer? 9, and remainder is 0 in this case. See, 3 and 27, when you will divide, 9 is quotient and the remainder is 0. So once if we get the remainder 0, in that case we say 3 by which we are dividing. 3 is a factor of 27. 27 is numerator. So this denominator is a factor of numerator. And similarly, or we can say 27, that is numerator, we can write it 3 into 9, and from this we can say numerator, that is 27, is a multiple of 3 denominator. Okay, so factor and multiple. Now you understood the difference between factor and multiple. In case of factor, we have to divide smaller number, we have to divide bigger number from a smaller number, and in case of to multiple, to know the multiple, we have to write the bigger number in multiples of smaller numbers. ठीक है. Similarly, in polynomials, we do, like example, we can take two polynomials x and x cube, where x is non-zero. So if you divide x cube by x, you will get answer x square, because one x will be cancelled out. Okay, yeah, x की power 3, you will take x 3 minus 1, x की power 2, remainder is 0. So which one is factor and which one is multiple? X is a factor of x cube, and we can say x cube, this x cube is a multiple of x. Okay, now it's clear the term factor and multiple. For to understand more clearly, we are doing another example in polynomial to explain factor and multiple terms. So here I have taken two polynomials. Px is 2x cube plus x square plus x, and the other polynomial gx is equal to x. So first of all, remember that as in numbers, the number in denominator should be smaller than number of numerator when we divide. Okay, smaller or equal. Similarly, in polynomial, denominator, degree of denominator should be less than or equal to degree of numerator polynomial. Okay, the same here, the condition on degree. So हमें क्या करना है? 2x cube plus x square plus x divided by x. Okay, this is very simple example. We can break it, separate it term by term. 2x cube by x plus x square by x plus x by x. 2x square plus x plus 1. Remainder is 0 because it is dividing fully. So x is, what will we say? This x is a factor of numerator, that is 2x cube plus x square plus x. And in terms of multiple, what we say? Numerator 2x cube plus x square plus x is multiple of denominator x. Okay, so
Don't confuse between factor and multiple terms. Now we'll discuss division algorithm in polynomial. Long or actual division algorithm in polynomials. So the statement is that if we have two polynomials px and gx such that I have already discussed degree of numerator polynomial should be greater than equal to degree of denominator polynomial gx. Here we are taking gx is in denominator, and other condition is denominator polynomial is non-zero, gx is non-zero. Okay, then we can find two polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx will be either 0 or degree of rx will be less than degree of g, जिसको denominator polynomial. Okay, so px we call it dividend या भाज, gx we call it divisor और भाजक, qx we call it quotient और भागफल, rx we call it remainder और शेषफल. Okay, so remember this statement by name also. qx is quotient, rx is remainder, gx is divisor and px is dividend. So this is basically we are dividing, we have gx in denominator and we are dividing px. फाइन, तो इधर हमारा क्या आ रहा है qx, और यहाँ पे जब आप डिवाइड करके फाइनल जो आएगा दैट इज़ योर rx. ओके, तो gx आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, px आपका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, qx आपका यहाँ पे जो आएगा रिजल्ट कोशेंट, एंड लास्ट में जो आपका आएगा रिमाइंडर rx. तो rx की डिग्री ऑलवेज विल बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, दैट इज डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. सो वी understand this algorithm by an example. We have a polynomial pax x cube plus 2x square plus 2x plus 4 and the polynomial gx x plus 3. Divide px by gx and find the quotient and remainder. Okay, तो कैसे डिवाइड करेंगे, how will we divide? In case of polynomial it is little bit, concept is same but is little bit tricky. तो x प्लस 3 से डिवाइड करना है हमको, तो x प्लस 3 लिख लिया. डिवाइड किसको करना है, px को, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. ओके, अब देखिए हम किससे डिवाइड करें. हमारे पास यहाँ पे क्या है x, डिग्री कितनी है 1. यहाँ पे हमारे पास क्या है x क्यूब, डिग्री कितनी है 3. अब वी वांट अ पॉलिनोमियल, इस एक्स क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पॉलिनोमियल हमें चाहिए वो एक्स क्यूब एटलीस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए उसकी. ठीक है, हमें एक्स क्यूब का पॉलिनोमियल चाहिए. तो इस एक्स में हमें एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे पावर 1 है, जब हम एक्स की पावर 2 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है ना सेम बेस पे. तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म लिया और एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ एक्स क्यूब. ठीक है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो गया प्लस 3x स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, नंबर वाले डिवीज़न में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे. तो ये हमारा प्लस साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस. ओके, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये बचा आपके पास. अब इस 2x को हमने नीचे ले आए. ठीक, इस 2x को हम नीचे ले आए. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. हम डिवाइड कब तक करते रहेंगे, जब तक
लास्ट में हमारे पास डिग्री इससे कम ना हो जाए। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, तो जब तक यहाँ पे हमें x की पावर 1 या हायर टर्म्स मिलते रहेंगे तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक, अभी हमारे पास x स्क्वायर का टर्म है, तो इसका मतलब ये हायर टर्म, हायर डिग्री है, अभी भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे पावर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, x, तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें x का टर्म चाहिए। जब हम सिर्फ x का टर्म लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 + 1 पावर क्या हो जाएगी, x की 2। तो हमने यहाँ पे x लिया, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे कोफिशिएंट भी देखना पड़ेगा। यहाँ कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, माइनस, तो यहाँ पे हम साइन क्या लेंगे, माइनस। अब -x को x + 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, -x × x, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, -x + 3, तो ये हो जाएगा -3x। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, ये माइनस साइन भी प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाते हैं नीचे वाले के। तो एक्स स्क्वायर, ये -x स्क्वायर + x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 0। 2x - 3x, इस ये नॉट माइनस, प्लस 2x + 3x, तो क्या हो गया 5x, ये बचा हमारे पास। अब हमने यहाँ से इसको, इस 4 को नीचे ले आए, ये 4 हमारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल टर्म क्या है, 5x + 4। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1x। अब यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी डिग्री कितनी है, 1, x का टर्म हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो x का टर्म तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्योर कांस्टेंट टर्म, प्योर कांस्टेंट टर्म लेंगे। बट प्योर कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे, जो इसका कोफिशिएंट है x का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो हम प्योर कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे, 5 + 5 + 5 को जब हम इस टर्म से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, +5 × x क्या हो जाएगा, +5x, एंड 5 × 3 15 +15। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, 5x - 5x 0 हो जाएगा, +4 - 15, तो ये क्या हो जाए आपका, -11। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो आपको QX की जगह पे ये मिला, ठीक है, और RX की जगह पे आपको क्या मिला, ये -11। ये आपका GX था और ये आपका PX था। तो क्वोशिएंट आपको क्या मिला, x² - x + 5, this one, and what remainder you got, -11. Okay, so there are so many questions in exercise in which you have to find quotient and remainder by using डिवीज़न एल्गोरिदम, वास्तविक भाग प्रक्रिया या सिंपली भाग प्रक्रिया, ऑफ बहुपद की भाग प्रक्रिया, या लॉन्ग और एक्चुअल डिवीज़न। सो एक क्वेश्चन हम और कंसीडर करेंगे। देखिए, इन दिस एग्जाम्पल इट इज़ सेइंग शो बाय लॉन्ग डिवीज़न दैट x - 3 is a factor of 2x की पावर 4 + 3x³ - 26x² - 5x + 6। तो लॉन्ग डिवीज़न से आपको शो करना है, तो सिंपल जो हमने अभी डिवाइड किया है सेम वही प्रोसेस करना है, और हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो x - 3 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर आपका क्या है, x - 3, दैट इज़ GX आपका है x - 3। न्यूमरेटर PX आपका क्या है, 2x की पावर 4 + 3x³ - 26x² - 5x + 6। अब आपको डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम पहले। देखिए, आपके पास यहाँ पे जो नंबर लेंगे उसको हम डिसाइड करेंगे। हमारे पास ये जो GX का डिग्री है और जो यहाँ पे हमारी PX की डिग्री है, उस पे हमारे पास यहाँ क्या है, x
यानी x की पावर 1 और हमें चाहिए x की पावर 4, तो हम क्या लेंगे, x की पावर 3 का टर्म लेंगे। तो दैट इज़ वाई वी टुक द टर्म x की पावर 3। बट x की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 4 तो मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट कोफिशिएंट 2, वी वांट कोफिशिएंट 2 ऑल्सो। तो फॉर दैट हियर वी विल टेक 2x क्यूब। फाइन, नाउ मल्टीप्लाई दिस 2x क्यूब एंड x माइनस 3। तो 2x क्यूब इंटू x, what will be the answer, 2x की पावर 4, 2x क्यूब माइनस 3, it will be minus 6x cube. Fine, now subtract, this is plus so it will be minus, it is minus so it will be plus, this will be 0, 2x की पावर 4 minus 2x की पावर 4 will be 0 and 3x cube plus 6x cube, तो ये क्या हो गया, टोटल 9x cube because we are adding। ये टर्म हम नीचे ले आए -26x², ठीक, ये टर्म नीचे आ गया। अब हमारे पास जो यहाँ टोटल टर्म बचा है उसकी पावर कितनी है, 3, उसकी डिग्री कितनी है, 3, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, और हमें चाहिए डिग्री 3। तो हम x की पावर क्या लेंगे, ये x की पावर 1 है, जब हम x की पावर 2 लेंगे तो हमें x की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, x की पावर 3 तो मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट 9, कोफिशिएंट 9 कैसे आएगा, हम यहाँ पे +9 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई +9। ठीक है, तो +9x² को इस टर्म x माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 9x² इंटू x क्या हो गया, 9x क्यूब, 9x² माइनस 3 क्या होगा, -27x²। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन विल बी अपोजिट, प्लस माइनस एंड माइनस चेंज, माइनस साइन विल बी चेंज बाई प्लस। 9x क्यूब माइनस 9x क्यूब, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 0। ठीक, अब ये है -26 एंड +27x², तो ये क्या हो जाएगा आपका x², 27 माइनस 26 +1। ठीक, तो +1x², इस -5x को हमने नीचे ले आया, -5x। अब हमारे पास टोटल टर्म यहाँ क्या है, x² माइनस 5x, डिग्री कितनी है 2, और हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, तो हम x की कौन सी पावर लेंगे मल्टीप्लाई के लिए, x की पावर 1 लेंगे। ठीक है, x की पावर 1 लेंगे, कोफिशिएंट भी हमें 1 चाहिए, तो हम सिंपली x से ही हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो x इंटू x, x², x इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3x। फाइन, x सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² माइनस x² 0, -5 प्लस 3x माइनस 2x। अब इस 6 को हम नीचे ले आएँ, -2x प्लस 6, ये हमारा हो गया टोटल टर्म। डिग्री यहाँ पे क्या है 1, और हमारे पास यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो इट मीन्स हमें अब x का टर्म नहीं लेना है, प्योर कांस्टेंट टर्म लेना है। प्योर कांस्टेंट टर्म हम लेंगे क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारा यहाँ क्या है -2, तो हम प्योर कांस्टेंट टर्म जो लेंगे वो लेंगे -2। ठीक, जब -2 लेंगे तो -2x हो जाएगा यहाँ पे एंड +6, फिर उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, -2x प्लस 2x 0 एंड 6 माइनस 6 0, तो ये जो हमारा रिमाइंडर बचा वो क्या है 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, और ये जो हमारा पूरा टर्म आया ये क्या आया, कोशेंट। ठीक है, तो इन केस जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा gx है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो इट मीन्स gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, इट मीन्स x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 26x² माइनस 5x प्लस 6। So based on this division algorithm you can find quotient and remainder, and you can check whether the denominator is a factor of numerator or not. ठीक है, तो for the factor
for being a factor the necessary condition is Rx, that is the remainder should be 0. अगर हमारा remainder 0 आ जाता है then our Gx will be factor of Px. Okay, try the more questions from your book.